write down. For given image, perform following operation. कॉपी मत करना, मैं बोल रही हूँ वो लिखना है आपको. For given image, perform following operation. 1. Digital negative. First, digital negative. Second, contrast stretching as per the characteristics given in figure. Contrast stretching as per the characteristics given in figure. Next, bit plane slicing. Next, bit plane slicing. Yeah, that's it. Okay. So write down this image first. Digital image 4 by 4 is given and this characteristic is given. मैम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ. For the given image, perform the following operations. First one, digital negative. Second one, contrast stretching as per the characteristics given in figure. And third one, bit plane slicing. Write down this image 4 by 4 image is given and this characteristics is given. So from the characteristics for the contrast stretching, you have to find out the value of R1, R2, S1, S2. These values are not given directly in question. From this graph, you have to write down this all values. Okay, so for the first part, digital negative, what we have to do first? Finding the maximum value. Yeah, so find the value of L first. How we can find out the value of L? Writing in binary form firstly. Yes. So which one is the maximum, which one is the highest number in the given digital image? 14. Is 14. So represent the 14 in binary form. How many bits are required to representation for the 14? 4 bits. 4 bits. Okay. So you got the value of small n, that is 4. So 2 raised to n, that is 2 raised to 4. So it is equal to 16. So L is equal to 16. Now what is the formula for the digital negative? L minus Minus 1 minus R. Yes. So S is equal to L minus 1 minus R. So L minus 1 is 15. So each and every pixel value in the given digital image you have to subtract from 15. You will get the digital image, negative image. Here from the characteristics also you can write down the L minus 1 value. Okay. Here is given the maximum value, top value it is L minus 1. We know the characteristics in the contrast stretching. Okay. So this is L minus 1. This is L minus 1. So L minus 1 is 15. You can also see from the, you can also write down from the characteristics.
So you got the answer for the digital negative. First one is the 5, then 13, then 2, then 8. First row. Similar like others. Okay. It's very simple. You have to subtract each and every value from the 15 only. Now for the next part, contrast stretching. So we need a value of R1 and R2, S1 and S2 for the contrast stretching. So what is the value of R1 and R2? 5 and 10 respectively. It's 5 and 10. This is R1, this is R2. Similar, this is S1 and this is S2. And this is your L minus 1. Okay, it's 15. So first write down these all values. R1 is 5, R2 is 10, S1 is 2, S2 is 12, and L minus 1 is 15. Then find out the value of alpha, beta, and gamma. So using the line equation, find out the value of alpha. What is value of alpha? 0.4. 0.4. Yeah, correct. 2 by 5. Okay. Now, what is the value of beta? 0.5. It's 0.5. No, beta is 2. 12 minus 2, that is 10. Divide by 5. 10 by 5. Y by x करना है. Yes Is it मैम, 2? 0.5 ही आ रहा है. कैसे 0.5 आएगा? Y2 minus Y1, that is 12 minus 2. So Oh it's 10. sorry, I made a mistake. Yeah. And divide by 10 minus 5. So it's 5. So 10 by 5, it is 2. Now what is the value of gamma? Other students, आप लोग कर रहे हो कि नहीं? मैम R1 S1 की वैल्यू क्या होगी? मैं कंफ्यूज हो गया इसमें. Okay. R1, S1, R2, S2 it's not given directly in the question. So graph is given. Okay. So this first value it is R1. This is the R2. This is S1. This is S2. And the last value is L minus 1. Both sides. ओके मैम. Gamma is 0.4. Alpha is 0.4. Beta is 2. And gamma is 0.6. Yes ma'am. Correct? Yeah. Now make the table for the contrast stretching for the value of S. So first write down the R. R का रेंज क्या आएगा? कितनी वैल्यूज आएगी R की? 0 to what is the maximum value क्या मिला अपने को? 16. So when we are considering from 0, so it's 0 to 15. Okay. So write down the R in the first column, 0 to 15. Now the second column, write down the S. So for which value of the R, we have to take the which equation. It depends on the value of R1 and R2. Okay. So for the first, S is equal to alpha into R. Alpha into R for the 0 to R1.
0 less than equal to r less than equal to sorry, not less than r1, not equal. 0 to r1. So what is the r1? It's 5. So for the 0, 1, 2, 3 and 4, you have to use the equation s is equal to alpha into r. Are you getting me? Do you know the equation? Contrast stretching equation याद है कि भूल गए? यस मैम, याद है. Okay, fine then. So use the different equation of s and find out the value. So for the r is equal to 0, the value is 0. For r is equal to 1, s is 0.4, r2 it's 0.8. हो गया कि बाकी है? अभी तक कर रहे हो आप लोग? ओके, बाकी लोग कर रहे हैं कि सबका हो गया? तो मैं पूरा आंसर दिखाऊं? डूइंग. ओके फाइन, कंप्लीट हो जाए तब बताओ. क्लास में सिर्फ 40-42 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ रहता है. बाकी लोगों को इनविटेशन दो जो आपके फ्रेंड्स है, आते नहीं है, कि भी नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, आ जाए. ओके, चेक योर आंसर.
Did you get it, everyone? Yeah, ma'am. Okay, fine. Then write down the digital image of new, that is S. So मैंने बताया था last time how we can write down the value of S. Okay. So first value input image क्या था 10. So for the R equal to 10 आपको S क्या मिला है? S is equal to 12. Okay. So you have to write down the 12 here. Similar, second, what is the value of R is 2. So for the 2, R equal to 2, S is 0.8. So you have to write down the 0.8 in the second box. Similar, next is the 13. So for the 13, you got the S is equal to 13.8. So you have to write down here. So like that, you have to complete the output image S. After that, you have to write down the round off value. Above 0.5, take the higher value. Below 0.5, you have to take the lower value. So this is your final answer for the contrast stretching. टेबल करके छोड़ नहीं देना है. टेबल, it is not your answer. Okay, this is your answer. So ये final output image S लिखना जरूरी है. Okay, after that, bit plane slicing. So it's a simple. First write down the binary image. Take the input image. इनपुट इमेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो. बाइनरी इमेज में लिखो, बिट्स के फॉर्म में लिखो. 10, 3, 13 जो भी आपका. Then write down the individual planes of that. You will get the 4 different planes: LSP plane, MSP plane, and 2 middle plane, because one number is represented by 4 bits. So you will get the 4 different planes of that. So just complete this thing, bit plane slicing. Bit plane हो जाए तब बताओ मुझे. Done, students? Previous question. Yes, ma'am. Okay, write down this one, last one. 3-bit 4x4 image is given. You have to find out the digital negative first.
थ्रेशोल्डिंग विथ t इक्वल टू 4. थर्ड को नहीं लिखना है, क्लिपिंग अभी आपके सिलेबस में नहीं है, so don't write the third one. And the last one is intensity level slicing with and without background, R1 equal to 2 and R2 equal to 5. ये नहीं किया था ना हमने एग्जाम्पल? No, ma'am. Okay, fine, then write down. So which one is covered the gray level slicing as well as the thresholding? Don't write third one, huh? Okay, so in the question it is already given. It's a 3-bit 4x4 image. So 2 raised to 3 is equal to 8. So you can directly write down the value of L is equal to 8. So L minus 1 is 7. Subtract all the values from the 7. You will get the digital negative. Done. Digital negative हो गया सबका? Okay, so this is the answer of digital negative. Now, next is the thresholding. What is the formula for the thresholding? S is equal to S is equal to L minus 1 for R is greater than equal to A. What is A? That means whatever the threshold value you have decided. Okay. So यहाँ पे A की जगह पे capital T दिया है, that is 4. So A is 4. So when the value of input image R, it is greater than equal to 4, so S become L minus 1. What is L minus 1? It is 7. तो वो सारी value 777 आएगा. When it's less than 4, it becomes 0. ग्राफ याद है कि नहीं? स्ट्रेट ग्राफ था, मिडल वन. Above the value of A, it's a higher value, maximum value L minus 1. And below the A, you will get the 0 value in the output image. Okay. So this is the formula. Yeah, this one. S is equal to 0 if R is less than equal to 4. Okay. And it is L minus 1 when R is greater than 4. So as per the input image, जहाँ पे भी वैल्यू 4 से ग्रेटर है, 5, 6 एंड 7 है, वहीं पे सब वैल्यूज क्या हो जाएगी? 777 लिखना है आपको. और जो भी लेस देन इक्वल टू 4 है, दैट मीन 0, 1, 2, 3 है, वहीं पे आपको सारी वैल्यूज 0, 0, 0, 0 लिखना है. So you will get this answer. Understood? Yes, ma'am. So in the thresholding, you got the output image in two form, black या white. So 0 is indicate the black color, 7 is indicate the white color. Done. Now last one in intensity level slicing. It is known as the gray level slicing. So in the gray level slicing, there are the two parts, with background and without background. So in the with background, S is equal to same concept same hai. If R is greater than equal to R1, then L minus 1, and is less than, then it is as it is R. Background information as it is आएगा. और विदाउट बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को 0 कर देना है. ओके.
So you can see here my R1 and R2. Sorry, this is the clipping part. It's not required. So here this is the without background. R1 is equal to 2 and R2 is equal to 5. Okay. So when the value of R in between this range R1 and R2, it should be L minus 1. That is 7. And without background here, so definitely for the other values you have to take the 0. And with background, instead of the 0, out of the range, you have to take the as it is input image value. So it is R. So अगर 0 या 1 है या 6 या 7 है तो वो एज इट इज आएगा 0 1 6 7 और 2 2 5 के बीच में है तो आपको उसको रिप्लेस करना है 7 के साथ. So you will get this on value. Clear? Any doubt? Ma'am, can you show the main digital image once again? Yeah, this one. इनपुट इमेज स्टार्टिंग में लिख के रखो आप लोग. Okay, ma'am. Ma'am, Yeah. ma'am, can you show the threshold image, ma'am? Yeah, this one. Ma'am, second column should be 0, right? Since it's Second, which pixel? 1, 1. 1, 1 is 0. I have written 0, na? Okay. Ma'am, Starting from the below. Okay, मैंने below से start कर तो इस I have written 7. Okay, let me check. What is the? It's a 5. ma'am, I mean 2, 2. 2, 2. 0, 1, 2, 2. That is 4. Ma'am, it's यहाँ 4, पे जो yeah. 4 है? Yeah. So it should it's be 4. 0, right? I have written 7. Okay. Okay, fine. मैंने यहाँ पे equal consider किया है. अब दोनों चलता है. Suppose you are considering the equal here, less than equal, या you can consider the greater than equal here. Anyone is fine. Okay. दोनों में नहीं आना चाहिए. Any one में आप consider कर सकते हो. So it's also fine. अगर आपने यहाँ पे consider किया तो भी सही है और यहाँ पे इसके साथ किया तो भी सही है. तो मेरा थोड़ा कंट्रोल हो गया है. मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल यहाँ पे और कंसीडर यहाँ पे किया हुआ है. आई विल चेंज इन द पीडीएफ. इट विल बी 0. यहाँ पे 0 आएगा अगर यही इक्वेशन फॉलो करते तो. मैम एक बार ग्रे लेवल स्लाइसिंग का दिखाओ ना. Yeah, this one. So in between the 2 to 5 range, 2, 3, 4, 5, you have to write down the 7, 7, 7. And out of this range, you have to take the 0, 0, 0 without background. And with background, out of the range, you have to take as it is value. ये कुछ मिस्टेक किया मैंने क्या? जस्ट वेट. Yeah, fine, बराबर. Done? Everyone? Yes, ma'am. Others? Okay. Yes, ma'am. Fine. So हम लोगों ने टोटल कितना सीखा था? Examples of point processing, digital negative, contrast stretching, thresholding, gray level slicing, and bit plane slicing.
5 examples we have done in the point processing theory, as well as we have also done the example based on that. Okay. Last 2 more examples of the point processing are remaining. So one is the dynamic range compression. It is called the log transform. And next one is the power law transform. उस पे बेस पे examples नहीं है, but it's also an example of the point processing. So what is the dynamic range compression? So ये पर्टिकुलर मेथड हम लोगों को कहाँ पे यूज कर अप्लाई कहाँ पे करते हैं? तो इट इज कॉल्ड द लॉग ट्रांसफॉर्म. ओके. तो जब भी आपके कोई इमेज है, सपोज यू आर कैप्चरिंग द इमेज, और वो पर्टिकुलर इमेज में जो पिक्सल्स वैल्यूज है उसमें बहुत वो डायनेमिक रेंज, दैट इज द हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू एंड लोएस्ट पिक्सल वैल्यू, वो दोनों का रेंज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ओके. तो एग्जांपल लेते हैं. तो इन अ डे टाइम वी कांट सी द स्टार्स इन अ स्काई. क्यों? क्योंकि सन की जो इंटेंसिटी वैल्यूज है वो स्टार की इंटेंसिटी वैल्यू से बहुत ही ज्यादा है. तो इसीलिए वो डायनेमिक रेंज है दोनों का वैल्यू में बहुत ज्यादा है. तो इसीलिए हम लोग स्टार्स नहीं देख सकते. तो सेम इमेज में भी ऐसा होता है कि नॉर्मल इमेज में अगर डायनेमिक रेंज ज्यादा है तो वी कांट सी द लोवेस्ट इंटेंसिटी पिक्सल्स. ओके. तो डायनेमिक रेंज को कंप्रेस करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. और वन मोर थिंग कि जब भी डायनेमिक पिक्सल वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है तो उसको हम लोगों को फूरियर स्पेक्ट्रम में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो उसमें भी वो जो हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू रहेगी वो डॉट डॉट ही दिखते हैं. तो डेफिनेटली जिसका इंटेंसिटी वैल्यू ज्यादा है वो भी एज अ डॉट फॉर्म में दिख रहा है. तो डेफिनेटली जिसका इंटेंसिटी वैल्यू लो है वो आपको दिखेगा ही नहीं. ओके. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज the log transform over that is dynamic range compression. तो इसमें क्या होगा, जो भी पिक्सल वैल्यूज हाईएस्ट होगा उसको वो डाउन करके सिमिलर में लाएगा तो पर्टिकुलर आपको प्रॉपर इमेज दिखेगा. तो इसमें जो उसके फॉर्मूलाज है दैट इज एस इज इक्वल टू सी इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस आर. तो सी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू. वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ ओरिजिनल इनपुट इमेज की पिक्सल वैल्यू को लॉगरिथम लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को एक पर्टिकुलर रेंज में पिक्सल वैल्यूज मिलते हैं. तो सी का वैल्यू मोस्टली वी टेक द 1. सी इज द कांस्टेंट, वी हैव टू टेक द 1 एंड लॉग ऑफ 1 प्लस आर. आपको जो भी इनपुट इमेज सपोज कुछ दिया है, इंडिविजुअल पिक्सल्स वैल्यू लो, उसके साथ उसमें लॉग अप्लाई करो तो यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस फॉर द पर्टिकुलर इनपुट पिक्सल. ओके. तो उसका जो ग्राफ बनेगा इट्स सिमिलर लाइक दैट. ये आपको लॉगरिथम ऐसा मिलेगा लॉग ट्रांसफॉर्म. और अगर इनवर्स लॉग अप्लाई किया यू विल गेट दिस ग्राफ. ओके. तो यू कैन सी यहाँ पे सपोज मेरी आर की वैल्यू ये रेंज में है, आर इज इक्वल टू 10. तो फॉर दैट यू विल गेट द एस इज हियर. तो आपका ये जो बाउंडिंग आ गया, आपको ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसके बिलो में ही आपको एस का वैल्यू मिलेगा. तो आफ्टर अप्लाइंग द लॉग एंड इनवर्स लॉग यू विल गेट द आउटपुट of the pixel you will get the pixel value in the output image in the particular range, in the particular dynamic range. तो अगर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, सपोज ये मैंने एक टेबल में वैल्यूज लिखा हुआ है. तो सब s इज इक्वल टू सी इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस आर है. ओके. तो r का सपोज मैंने वैल्यू लेती 109 देन 111 98. और आप ये फॉर्मूला यूज करके जब s का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको बहुत ही स्मॉल वैल्यूज मिलेंगे. लार्ज वैल्यू को डिग्रेड डाउन करके विच वन इज कन्वर्ट इनटू द स्मॉल वैल्यूज तो वो आपको प्रॉपर इमेज में दिखेगा. अदरवाइज क्या होता है, जब इंटेंसिटी वैल्यू बहुत हाईएस्ट रहता है तो फूरियर स्पेक्ट्रम में यू विल गेट द ओनली स्मॉल डॉट्स ओवर दैट, और लोवेस्ट जो रहते हैं इंटेंसिटी वैल्यू वाले पिक्सल दिखते ही नहीं है. ओके. तो अगर आपको एज अ एग्जाम्पल मतलब ट्राई करना है तो यू कैन राइट डाउन दिस इमेज. फॉर्मूला यूज करना एस इज इक्वल टू सी इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस आर, और आपको आउटपुट टेबल में बहुत ही स्मॉल वैल्यूज मिलेगा कंपेयर विद दिस वन. ओके. आप लोग खुद एक ट्राई करना, उसके बेस पे कोई एग्जाम्पल नहीं आता है तो मैं इसीलिए यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं करते हम लोग. कोई भी कैसी वैल्यूज ले लेना, अप्रॉक्स 100 वैल्यूज कंसीडर करो और फाइंड आउट द आंसर ऑफ एस फॉर यूजिंग दिस इक्वेशन सी इंटू log of 1 plus r. So this is the log transform. Similar is the power law transformation. Power law transformation भी उसका यूज भी वही है, सेम डायनेमिक रेंज को कंप्रेस करने के लिए. बट इसमें यूजिंग द गामा करेक्शन वी कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पिक्सल्स.
So the formula is different, C into R raised to gamma. Okay, so यहाँ पे जैसे आप गामा का वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ द गामा, तो अकॉर्डिंगली दैट यू विल गेट द सम डिफरेंट ग्राफ्स ओवर हियर. ओके, तो ये आपका स्ट्रेट ग्राफ है. स्ट्रेट ग्राफ कब मिलता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब S and R both are equal, then you will get the linear function. Okay, और एक्चुअली पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करते हैं, जब नॉन लीनियर फंक्शन मिलता है, नॉन लीनियर इमेज मिलता है. व्हेन यू कैप्चर द इमेज एंड इट इज द नॉन लीनियर, फॉर दैट हमको वहीं पे उसको ये पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो दिस इज योर लीनियर. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे जब गामा करेक्शन वैल्यू अलग अलग लेंगे, गामा करेक्शन 0.5, 1, 1.5, 2, तो अकॉर्डिंगली दैट आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग अलग ऐसे ग्राफ्स मिलते जाएंगे both side. Okay, so this is the also used for the to compress the dynamic range of the input image. So these two are also example of point processing. पॉइंट प्रोसेसिंग में क्या है, पॉइंट प्रोसेसिंग में हम लोग डायरेक्टली पिक्सल पे टेक्निक सप्लाई करते हैं और इंडिविजुअल पिक्सल का वैल्यू चेंज करते हैं. क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट प्रोसेसिंग? एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Clear. ओके, तो ये पॉइंट खत्म हुआ और लास्ट पॉइंट अपना है हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन. सो व्हाट इज द हिस्टोग्राम? एक्चुअली ये नए सिलेबस में बहुत कुछ, एक्चुअली पॉइंट प्रोसेसिंग के बाद नेबरहुड प्रोसेसिंग होना चाहिए था एज पर द ओल्ड सिलेबस जो प्रॉपर सीक्वेंस में था, बट अभी इन लोगों ने इसको सेकंड यूनिट में डाल दिया है पूरा. सो मैं अकॉर्डिंगली सिलेबस हम लोग जाते हैं कि कोई पॉइंट मिस ना हो. So, okay, the histogram. So, what is the histogram? Histogram, we can say it is a graphical representation of the image. Okay, तो जिसमें ग्राफ कैसा बनता है, ग्रे लेवल वर्सेस नंबर ऑफ पिक्सल्स, या तो यू कैन से ग्रे लेवल वैल्यूज. मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट वेट. Yeah. So this is your histogram. Histogram, we can say it is the graphical form of the image. We can represent the image in graphical form. So what is the graph? What graph is indicate? X-axis, we have to take the gray levels. How many gray levels are there? 0 to 7 or 0 to 15 or 0 to 28, whatever the, you have to represent the gray levels on the X-axis. And on the Y-axis, you have to represent the gray levels value. What is the gray levels value? Suppose my gray level is 0 और मेरा input image में है 4x4 image में 0 कितनी बार आया है? Suppose 0 5 times आता है. So this is the value of gray level 0. Gray level 0 का value क्या है? 5 है. Suppose once मैंने 3 times represent किया in the input image में, तो gray level is a 1. Gray level क्या है? मैंने gray level consider किया है 1. But 1 how many times is present? It's 3 times. So it is called the gray level value. Okay. तो ये जो ग्राफ है इसमें ग्रे लेवल वर्सेस ग्रे लेवल वैल्यूज रहते हैं. नाउ histogram, what is the use of the histogram? Using the histogram, again we can apply, this is also one type of the image enhancement technique. So we can increase the contrast, we can increase and decrease the brightness of that. So overall we can improve the appearance of the image. Okay, so in the histogram you can see here, if in the image there are the more black pixels, okay, in the image is like that, it's a, we can say it's a dark image. So when the image is dark, that means there are the more black pixels. So you will get the histogram at the low at the side of the low gray levels. Gray levels जहाँ पे low हो गए, that mean in between the suppose 0 to 5 या 0 to 10, lower side gray levels रहेंगे, वहीं पे आपको ग्राफ मिलेगा. Okay, you can see here. बड़ा करो उसको. Yeah. Now second, if it is the bright image जिसमें white pixels ज्यादा रहते हैं इमेज में, okay, so you will get the graph towards the highest value of the gray levels. तो ये आपको ग्राफ यहाँ पे इतना पोर्शन में ही मिलेगा, लोअर साइड पे नहीं मिलेगा. If it is a dull image, input image कैसा है आपका, ऐसा dull image है, okay, तो you will get the histogram in the middle range of the gray level. आपको ऐसे middle range में मिलेगा, in between. और पिक्सल विद द ऑल इंटेंसिटी लेवल्स, ओके, सारे इंटेंसिटी पिक्सल का जो वैल्यू है वो सारी रेंज में है. तो इफ द पिक्सल ऑफ ऑल इंटेंसिटी लेवल्स, देन यू विल गेट द ओवरऑल हिस्टोग्राम.
आपको हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम के ग्राफ ओवरऑल मिलेगा, सारे ग्रे लेवल्स पे आपको कुछ ना कुछ ग्राफ मिलेगा. So this is the types of the different histogram we will get. It is depends on the input image कि आपका इमेज कैसा है. या उल्टा हम कर सकते हैं, अगर आपको हिस्टोग्राम ऐसा मिला तो यू कैन अज्यूम कि आपका इनपुट इमेज कैसा होगा. So using the histogram graph, you can you can see the histogram and you can say my image should be the dark, whatever, the bright, yeah, dull, yeah, with the proper perfect image. Okay, so this is the types of the histogram. We can see it depends on the different type of the images. So it is the histogram. Okay, now what is the histogram equalization? तो ये क्या हुआ, हिस्टोग्राम आपको मिल गया. ओके, तो ओवरऑल जो परफेक्ट इमेज रहता है उसका हिस्टोग्राम आपको ऐसा मिलता है. तो हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन क्या है कि इट इज द टेक्निक, इट इज द प्रोसेस टू फ्लैट द हिस्टोग्राम. अभी टोटली फ्लैट हिस्टोग्राम मिलना पॉसिबल नहीं है. फ्लैट मींस व्हाट, यहाँ पे जो भी आपको लाइंस मिली है ना, ये सारी उसका सबका पिक्सल वैल्यू एक ही पिक्सल वैल्यू पे मिलना चाहिए. दैट इज टोटली फ्लैट हिस्टोग्राम, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन में क्या करते हैं कि इन प्रैक्टिकली वी विल गेट द फ्लैट अप्रोक्सीमेटली फ्लैट हिस्टोग्राम की ओवरऑल हमको प्रॉपर ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज मिलती है. यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पे क्या है, एकदम डाउन वैल्यू है. यू कैन सी है दिस इज डाउन वैल्यू. ओके, हिस्टोग्राम का वैल्यू सपोज 5 या 10 ऐसा कुछ होगा. यहाँ पे यू कैन सी इट इज द अप्रोक्स 500. तो इतना जो ज्यादा डिफरेंस है वो डिफरेंस कम करके ओवरऑल हमको फ्लैट हिस्टोग्राम मिलता है. तो इट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन प्रोसेस. सो यू कैन सी इन द नेक्स्ट डायग्राम. या तो हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन से भी अपने को, अगर इमेज के बारे में बात करें, इन टर्म्स ऑफ द इमेज वी विल गेट द अपीयरेंस ऑफ द इमेज विल बी इंक्रीज. हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो सपोज मेरा इमेज ये था, उसका मुझे हिस्टोग्राम ये मिला. ओके, तो अगर मैं इक्विलाइजेशन अप्लाई करती हूँ तो यू कैन सी इन द ग्राफ में भी आपको एक तो ओवरऑल मिलेगा, और यू कैन सी नंबर ऑफ द काफी ऐसे लेवल्स है ग्रे लेवल्स के जहां पे पिक्सल्स वैल्यू फ्लैट है. 100% फ्लैट हिस्टोग्राम मिलना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. ओके, so but most of the values on the gray levels you can see you will similar pixel values. Fine, और आपको यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. ये इमेज से बेटर आपको you will get this image. So this is the output of the histogram equalization. Okay, ये हम लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे. ऐसा ग्राफ मिलेगा और आउटपुट इमेज का भी अपीयरेंस भी इम्प्रूव होगा. प्रैक्टिकल में ऑल्सो वी विल डू दिस हिस्टोग्राम. तो थियोरिकली कंसेप्ट समझ में आया, व्हाट इज द हिस्टोग्राम? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, I ma'am. had a doubt. Can we Yeah. generate image from the histogram? नो, Okay, ma'am. सिर्फ हिस्टोग्राम के वैल्यू से नहीं मिलेगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते ना कि वो एग्जैक्टली वैल्यू क्या है उसका. Yes, ma'am. वही था, क्योंकि वो पोजीशंस हम लोग को पता होना चाहिए ना. नहीं पता चलेगा, तो उससे इमेज जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एक एक पिक्सल का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर ओरिजिनल इमेज को जनरेट कर सकते हैं. तो फ्रॉम द हिस्टोग्राम यू कांट जनरेट द इमेज. Ma'am, then you said that This we is can we use this for image enhancement. So फिर हम लोग को हिस्टोग्राम मिल जाएगा, तो फिर उससे वापस कैसे जनरेट करेंगे इमेज? सॉरी वापस रिपीट करो क्वेश्चन. Ma'am, you said that we use histogram equalization for image enhancement, right? So फिर एक बार हम लोग ने हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, देन हम लोग ने उसमें उसको प्रोसेस किया, उसको इक्वल कर दिया, देन हम लोग को वापस से इमेज जनरेट करना है हिस्टोग्राम से, तो वो कैसे होगा? वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन इज अ टेक्निक व्हिच वन इज व्हाई वी हैव टू यूज दिस टेक्निक, बिकॉज़ वी वांट टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द इमेज. ओके, तो दिस इज वन टाइप ऑफ द टेक्निक. तो ये तूने अप्लाई कर दिया तो इमेज का अपीयरेंस प्रॉपर हो गया, तो दैट्स वो उसमें ओरिजिनल वापस नहीं मिलेगा तुझे वो इमेज. तो अगर दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी तो वी हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक ऑन इनपुट इमेज ओनली डायरेक्टली. मैम, उसमें देन से फिर उसको यूज रिकवर करके वापस अप्लाई नहीं कर सकते हम. यस मैम, एग्जैक्टली लाइक, तो फिर इसका यूज क्या होगा? इमेज हम लोग ने हिस्टोग्राम में क्रिएट कर दिया, देन हम लोग ने उसको एनहांस भी कर दिया, बट हम लोग को इमेज एग्जैक्टली दिखेगा ही नहीं है, तो फिर ये एनालिसिस में यूज होना चाहिए ना प्रोबेबली. मतलब तुझे वो वापस कन्वर्ट क्यों करना है, और कोई टेक्निक अप्लाई करने के लिए क्या?
नो मैम, क्योंकि हम लोग जो भी मतलब यूजर को बताएंगे वो तो रिप्रेजेंट करेगा ना इमेज, वो उसको हिस्टोग्राम से कुछ पता नहीं चलेगा, राइट, कि वो क्या है। नहीं नहीं, तो मोस्टली यूजर को हम लोग को वापस से ये इमेज ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए। हाँ तो वी हैव टू आल्सो शो दिस रिजल्ट ना, कि दिस इज माय इनपुट इमेज, और मुझे इनपुट इमेज को अपीयरेंस अच्छा बनाना था, क्वालिटी इंक्रीज करना था, तो मैंने हिस्टोग्राम अप्लाई करके उसका क्वालिटी इंक्रीज किया। तो हिस्टोग्राम क्या है? एक तो क्वालिटी आउटपुट इमेज में आपको दिखेगा कि मैंने अप्लाई करके इतना इम्प्रूव किया है, और एक ग्राफिकल फॉर्म भी है कि जिससे आपको पिक्सल्स ग्रे लेवल वर्सेस उसकी पिक्सल वैल्यू भी पता चलेगा कि वहां कहाँ पे उसमें क्या डिफरेंस किया है। ओरिजिनल का ये था, आउटपुट का ये है। तो दिस इज द जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टू शो योर क्वालिटी ऑफ द इमेज, कैसे आपने इम्प्रूव किया है। एक टेक्निक ही है ये। जैसे हम कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं, तो दिस वन इज आल्सो वन टाइप ऑफ द टेक्निक ना, कि जिससे हम लोग अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी ऑफ द इमेज को इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे भी ये भी एक टेक्निक ही है हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन। अच्छा, ओके। कोई भी टेक्निक में हम लोगों को ओरिजिनल इनपुट इमेज को रिकवर नहीं कर सकते, रिवर्स प्रोसेस दिया ही नहीं है इसमें। क्लियर? यस मैम। सो हिस्टोग्राम पे भी एग्जांपल्स है। टाइम क्या हुआ? ओके, टाइम है अभी। सो वी विल डू द एग्जांपल बेस्ड ऑन द हिस्टोग्राम। Write down the example for that. Yeah, one more thing. So histogram का ग्राफ जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, there are two different methods. First, सपोज कोई इनपुट इमेज दिया है, इसमें से नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स क्या है? सपोज मेरे नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स है 0 to 6। ओके, 0 to 6 के रेंज में इनपुट इमेज में पिक्सल्स दिए हुए, बट 0 कितने टाइम दिया है? सपोज 40 टाइम्स दिया है। 1 कितने टाइम दिया है? सपोज 20 टाइम दिया है। 2, how many times are there? 10 times, 15 times, 10, 30 and 2. So this is the number of the pixels are available in the input image at the particular gray levels. Okay, so how we can represent? This is the 0 to 6 is my gray levels, and this one is to indicate the number of the pixels. 0, it is 14 times are present. 1, well, one's value is 20, 2 का 10 है। So this is the first method how we can represent the histogram in the graphical form. Okay, now यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ द पिक्सल वैल्यू, जो पर्टिकुलर पिक्सल का वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली दैट हम लोगों को बहुत ही वाई एक्सिस बहुत ही हायर वैल्यू मतलब इंडिकेट कर बताना पड़ेगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको शो करना इन ग्राफ में। ओके, सो सेकंड मेथड में क्या किया, उसको नॉर्मलाइज कर लिया है, द पिक्सल वैल्यू को नॉर्मलाइज किया, उससे हमको मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है? सपोज दिस इज माय ग्रे लेवल्स, ये नंबर ऑफ द पिक्सल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल्स क्या है? सबका एडिशन किया है, सो इट्स 100। individual pixel code that is 40, so 40 is divided by the 100, so we will get the 0.40. So this is the formula how we can get, this is the PRK, it is equal to NK by N. NK, this is your NK, or N is indicate the total number of the pixels, it is the 100. So उससे divide किया तो you will get the values in terms of the in between the 0 to 1 only. The maximum value is 1 only. So it is easy to represent in a graph form. Okay, so this is the second method. So mostly we use this second method to representation of the histogram. So there are the two different methods. So you can see here, वैसे सेम 0 का वैल्यू 0.40, 1 का 0.20 मिला, 0.10 मिला, तो यहाँ पे क्या है, उसका एडवांटेज क्या है कि मैक्सिमम आपको 1 वैल्यू ही मिलेगा। इट्स कॉल्ड द नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम। ओके, ये सेम चीज मैंने अभी आपको इमेज के साथ बताया। डार्क इमेज है तो आपको हिस्टोग्राम कहाँ पे मिलेगा? ब्राइट इमेज है तो हायर साइड पे मिलेगा। डल इमेज है, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है, तो यू विल गेट द हिस्टोग्राम इन बिटवीन। हाईएस्ट हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है, दैट मीन्स वी कैन से इट्स अ परफेक्ट इमेज। सो ओवरऑल एरिया में आपको हिस्टोग्राम मिलेगा। नाउ हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो स्किप, उसको करना है तो बाद में देखते हैं, ओवरऑल देख लेंगे बाद में। फाइन, या इक्विलाइजेशन, इक्विलाइजेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया। इक्विलाइजेशन क्यों यूज करते हैं? हम लोगों को फ्लैट हिस्टोग्राम मिले इसीलिए। फ्लैट प्रैक्टिकली फ्लैट मिलना पॉसिबल नहीं है, बट या वी कैन से
हम लोगों को अप्रोक्स वैल्यू मिलेगा प्रॉपर, ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि कोई एक ग्रे लेवल पे हिस्टोग्राम का जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू है वो 10 है और दूसरे का 200 है, तो उसको ये जो ज्यादा डिफरेंस है उसको ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज द हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन, सो वी कैन गेट द फ्लैट हिस्टोग्राम ऑफ दैट. ओके, so now this is the example. Perform the histogram equalization on the following image histogram and plot the original and equalized histogram. So this table is given, suppose, okay, the gray levels are given 0 to 7. So first you have to write down the number of gray levels. Then you have to write down the number of pixels. Number of pixels यहाँ पे लिखो. Then after you have to find out the normalized histogram value, that is nk by n. Total क्या वैल्यूज है एनके का उसे डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट दिस वैल्यू. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ द फर्स्ट एज इट इज, यू हैव टू राइट डाउन. ओके, देन राइट डाउन द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड 0.19 and 0.25, you will get the 0.44 here. Then you have to take the addition of first, second and third, then write down here. Then first, second, third, four, you have to write down here. So like that we can take we can say sk is equal to summation of prk. Okay, तो उसको one by one add करते जाओ, you will get this column. After that you have to write down the next column, that is sk into l minus 1. L minus 1 क्या है आपका, you have to multiply with the this column, so you will get this column. After you have to write down the round off value. राउंड ऑफ वैल्यू मिलने के बाद जो लास्ट है राउंड ऑफ वैल्यू, दैट मीन व्हाट, व्हिच वन इज इंडिकेट द न्यू ग्रे लेवल्स. तो वो एज इट इज ही मैंने सिर्फ उसको एक नया कॉलम में ग्रे लेवल्स नाम देके रिप्रेजेंट किया है. तो राउंड ऑफ वैल्यू जो भी मिला इट इज योर न्यू ग्रे लेवल्स. और ओल्ड ग्रे लेवल्स एंड न्यू ग्रे लेवल का रिलेशन क्या है, उससे हम लोगों को आउटपुट, दैट इज फाइनल हिस्टोग्राम आउटपुट टेबल लिखना है. तो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये टेबल कंप्लीट करते हैं हम लोग. ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, परफॉर्म हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन. मोस्टली हिस्टोग्राम का एग्जांपल एक क्वेश्चन रहता ही है फाइनल थियरी पेपर में, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में. So write down this table is given, gray levels versus number of pixels. Okay, then after you have to make this table. Yeah. Sorry. Question लिखा, then after you have to make this table. Write down the first column all gray levels 0 to 7.
The second one, write down the number of pixels nk. Then write down the value of n. उसका addition करो सारे pixels. क्या मिला addition n? 4096. 4096. अभी थर्ड कॉलम में क्या करेंगे? nk by n. जो भी इंडिविजुअल पिक्सल वैल्यू है उसको 4096 से डिवाइड करेंगे. तो you will get the third column. Now in the next column, what we have to do? First value we have to write down as it is. Then take the addition of first and second in PRK column and write down in the SK. Then take the addition of first, second and third. Then first, second, third, fourth, like that. SK वाला कॉलम हो गया, समेशन वाला. ओके, जितना भी हुआ है वहीं पे रखो. टाइम हो गया, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा. नेक्स्ट लैब है कि नहीं आज? मैम पता नहीं. किसका लैब है आज? जीनब मैम. जैनब मैम ने कुछ लिंक तो डाला नहीं है, पता नहीं, आप पूछ लो डायरेक्टली मैम को, CR. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये वीक से होने वाली थी लैब, फिर भी एक बार कंफर्म कर लो. हम लोग कल लैब है, परसों कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. ओके मैम. कल लैब के लिए पाइथन सबके पास है ना इंस्टॉल किया हुआ? यस मैम. यस मैम. नहीं है वो लोग प्लीज इंस्टॉल कर लेना. कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे पाइथन पे, फर्स्ट प्रैक्टिकल. ओके ओके मैम. मैम गूगल You कोलैब can leave. चलेगा ना? हाँ, तू यूज करता है कोलैब? मुझे एक डाउट है इसमें. यस मैम, मैं यूज करता हूँ. हाँ, तो इसमें इनपुट इमेज का पाथ हम लोग हमारे सेव्ड इमेज जो पीसी पे रहते हैं उसमें से देना पड़ता है या ड्राइव से लेना पड़ता है? मैम वो कभी ट्राई नहीं किया है, पाइथन इंस्टॉल कर देता हूँ आज. ट्राई नहीं किया तो फिर तूने यूज कैसे क्या किया है कोलैब में? मैम पीसी से करते हो. पीसी वाला मेरा नहीं ले रहा है, मैंने ट्राई किया कोलैब में बट एरर आ रहा था मुझे. मैम आपको पाथ डालना पड़ेगा. मैंने वही पाथ ही डाला पीसी में, जो जहाँ पे इमेज सेव्ड है मैंने उसका पाथ दिया उसको, बट कुछ तो एरर आ रहा है. तो क्योंकि ये कोलैब पूरा ड्राइव पे रहता है अपना, तो इमेज ड्राइव पे होना चाहिए, ऐसा मुझे मतलब डाउट है. मैम कोलैब के लिए ना आपको आपका इमेज वो ड्राइव फोल्डर पे ले जाना पड़ेगा. मतलब अगर गूगल कोलैब यूज करते तो हमारे ड्राइव पे कोलैब का एक फोल्डर बनता है. यस यस. तो वो फोल्डर पे आप इमेज सेव करके यूज कर लो. ओके
मुझे वही डाउट था कि ड्राइव पे होना चाहिए या पीसी पे होना चाहिए। मैम एक्चुअली दो Let तीन me check. तरीके हैं, बट देन मैम अगर ड्राइव पे भी ड्राइव कर पे सेव है तो फिर वो इजी रहेगा। डाउनलोड करके मतलब कहाँ पे? वो डाउनलोड करके कहीं पे तो सेव करना पड़ेगा ना। नहीं मैम, डायरेक्टली लोड कर सकते हैं ना। तो मतलब मैं समझी नहीं, पाथ पाथ कहाँ से देगा, कौन सा पाथ देना पड़ेगा एज ए इनपुट इमेज? मैम हम लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रीड करते हैं ना इमेज को, तो फिर वो जो बिट स्ट्रीम रहता है ना, वो डायरेक्टली हम लोग पास कर सकते हैं, वो ऑनलाइन लिंक से डाउनलोड करके। ठीक है, फिर हम कल प्रैक्टिकल करके कोलैब पे ट्राई करेंगे, मतलब ठीक है। कोलैब मैंने भी कभी यूज नहीं किया है, अगर वो है तो सबके लिए इजी रहेगा। अगर किसी ने पाइथन इंस्टॉल किया है नहीं किया है, कोलैब तो सबको सब यूज कर ही सकते, एक्सेस कर सकते उसको। ठीक है फिर मैम कल ट्राई करते हैं उसका। हेलो मैम। यस मैम एक बार टेबल बता दो ना आप। यस यस बोल, टेबल बताओ ना। सोल्यूशन का। हाँ मैम। आप सॉल्यूशन करके रखो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ ना। ओके आप ये ओके। का फर्स्ट रो लिख लो, क्या क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट में अभी फाइंड करना है n-1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद राउंड ऑफ करना है, दैट्स इट। ओके मैम। हाँ, आपने पीडीएफ अपलोड किया गया? नहीं किया है एक्चुअली, मेरा वही प्रॉब्लम हुआ है कि सब ड्राइव पे है, और ये जो भी लैपटॉप में यूज कर रही हूँ ना, मेरा लैपटॉप पे वो चल नहीं रहा है। मतलब मैं हस्बैंड का लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो उनका कंपनी का लैपटॉप है, तो मुझे ड्राइव एक्सेस नहीं करने दे रहा है अभी। तो मैं कुछ अपलोड भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा 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 ड्राइव भी ओपन नहीं कर पा रही हूँ, और मैं पूरा वीक लीव पे हूँ। मैम कब तक होगा दिन? ये वीक में पॉसिबल नहीं है अपलोड करना। मैं ट्राई करती हूँ, मेरा पुराना वाला लैपटॉप चालू हुआ तो मैं करने के लिए, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट मंडे को पूरा अपलोड करूंगी अभी। मैम नहीं तो ये पीडीएफ आप ग्रुप में डाल सकते हो क्या? एक्चुअली ये पीडीएफ पूरा चैप्टर का है, और आप ये मेरा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है, तो बहुत सारा अंदर है नहीं है वो मुझे एडिट करके मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैम बस सिर्फ वो रिवाइज करने के लिए। रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो ना। ओके मैम। आज दो ही एक्चुअली देखने जाए तो आज एक ही टॉपिक हुआ है अपना, हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन। इसमें एग्जाम्पल्स ही मैं ट्राई करती हूँ कुछ एडिट करने का अगर मुझे मिला, क्योंकि ये लैपटॉप मुझे अलाउ नहीं करता है कुछ भी करने के लिए, तो मोबाइल से जितना पॉसिबल है मैं इतना ट्राई करती हूँ। ठीक है, ओके मैम, कैन यू लीव? या यू कैन लीव, थैंक यू। मैम एक लिंक शेयर किया था मैम, उसमें वो डायरेक्टली VS कोड आईडी की तरह देता है गूगल की ओके कभी सर्विस किया में। तूने? 12:45। ओके हाँ सो हाँ, इंस्टॉल उसमें करने की क्या होता जरूरत है? नहीं पड़ेगी। वो VS कोड यूज़ करते हैं ना, वो डायरेक्टली वेब इंटरफेस देता है, हम लोग उसकी तरह ओके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड ये ठीक है, फ्री है ये सर्विस। ये लिंक मुझे व्हाट्सअप करना, अभी इसमें चला जाएगा, मैं मीट एग्जिट ओके करूंगी मैम। तो। तो अभी जो बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, अभी मैंने यूज नहीं किया है, बट मैं ट्राई ओके मैम, वो करूंगी, शेयर करते तब मुझे समझेगा। हाँ हैं। या वो शेयर करके रख, मैं देखती हूँ उसको। थैंक यू मैम। ओके बाय, थैंक यू, यू कैन लीव। Thank you, ma'am.